There are various factors to play out. First, the Donald Trump era has arrived, and we do know that it would favor the dollar and at the same time put tariffs and policies that favor the US companies. Secondly, it would have certain positive impact for the IT sector, but what about the overall market? Welcome back to weekly analysis by Stocker, and yet again this week is ended with Nifty just around the 200 days moving average. The Nifty met its long-term trend of 200 days moving average this week and closed around it on the daily. But there are various factors to play out. First, the Donald Trump era has arrived, and we do know that it would favor the dollar and at the same time put tariffs and policies that favor the US companies. Secondly, it would have certain positive impact for the IT sector, but what about the overall market? Why? Because China is pumping the multi trillion dollars into its domestic economy to improve the sentiment by pumping in trillions of yuans. At the same time, on the domestic front in India, the FII continue to excel. This is November mid-week, and we have seen continuous selling by the FIIs. At the same time, earnings is problem. We have seen some of the major companies reporting downgraded downgraded in terms of their earnings. The numbers aren't so good, and we have seen the impact of that in FMCG space. So this makes coming week very important for us. Why? Because we are at 200 days moving average. Are we going to form a bottom, or probably we can continue seeing the selling pressure? We will start with weekly chart. On the weekly chart, we'll try to understand the trend. What is the trend? Obviously, we have corrected 10% from the all-time high. Secondly, we're going to come down to daily chart and we're going to understand the sentiment and certain indicators that can point us to the overall price action that is going to be important. In the last, we'll go on 60-minute charts of Nifty and Bank Nifty to understand price action, which is important and help us to create the strategy for coming week. Let's move ahead and go to first and foremost important thing, price. Now, if you look at this particular chart, this is Nifty weekly chart. Obviously, the indicators below over here are the best indicators indicating the NSE India, new all-time high to new all-time low, which you see is still hovering around zero. At the same time, if you look at the NSE India number of stocks, one thing to look at over here on the weekly chart, first thing if you'll observe that number of stocks above the key moving averages have dropped drastically in the last couple of weeks since we have seen that particular deterioration since July. At the same time, your net new high, net new low hovers around zero or probably a mixed bag of signals. What is important is this trend line which marked the bottom and from where we begin the uptrend is standing at 23,200 to 23,300 zone. Now, I'm giving you a zone. I'm not specifically identifying the price point, but this is probably the zone where we may see certain kind of a bounce. We come down to daily chart, understand red. Now see, when we look at the net new high, net new low, it has been deteriorating and it has turned red. I mean, more of the number of stocks are making net new lows. At the same time, number of stocks above their moving averages is only 20%. सिर्फ 20% ऐसे स्टॉक्स है जो अपने 10, 20 और 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है मतलब 80% ओवरऑल एनवायरनमेंट में अपने की मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म और मिड टर्म हम बोल सकते हैं 20 और 50 इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं दूसरी बात हम जहां पर क्लोज हुए वहां पर 2200 डेज मूविंग एवरेज आ रहा है विच इज एट 23,555 यहाँ से एक बाउंस बैक बनता है जैसे देखिए हिस्टोरिकली 200 डेज मूविंग एवरेज की जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ यही है कि वो एक फिल्टर के तौर पे काम करता है और स्टॉक्स या इंडेक्स अगर इसके ऊपर रहता है तो हम मानते हैं कि एक बुलिश मोमेंटम है अगर इसके आसपास या नीचे रहता है तो हम मानते हैं कि एक मार्केट में वीकनेस है अब ये बहुत टाइम बाद अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आया है लास्ट टाइम ये 2023 में था जब हमने अप्रैल में एक अपसाइड ब्रेकआउट देखा था तो ये तो 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास का आने वाला हफ्ता बता देगा कि ये प्राइस एक्शन कितना इम्पोर्टेंट रहेगा हम इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट देख रहे हैं वो है निफ्टी फ्यूचर्स में और हम आइडेंटिफाई करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखिए ये आवरली चार्ट है मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी इज इन इट्स
पर्टिकुलरली बियर ट्रेड, और ये करेक्शन ऑलमोस्ट यहाँ से 10% से ज्यादा हो चुका है। अब सपोर्ट कहाँ पर है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो दो लेवल मैंने करे हैं वो है इलेक्शन डे के एक दिन पहले और उसके अगले दिन का प्राइस एक्शन। अगर आप यहाँ से देखिए और मार्केट ने जो 2 दिन में रिकवरी दी थी उसके बाद न्यू ऑल टाइम हाई बनाया था हमने, तो ये जो दो प्राइस एक्शन आते हैं, सबसे पहला सपोर्ट है निफ्टी के लिए 23,400। 23,400 सबसे पहला सपोर्ट है, और उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट बनता है वो 23,250, 23,250 से 23,200 के जोन पे बनेगा। तो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पर स्ट्रैटेजी यहाँ पर जो है वो सेल ऑन राइज की रहनी चाहिए। ऑब्वियसली एक बाउंस आएगा क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है, ब्रेड इतनी वीक है कि ये बाउंस बन सकता है, पर हमको रेजिस्टेंस यूज करने हैं। कौन से है वो रेजिस्टेंस? देखिए, सबसे पहला रेजिस्टेंस है 23,820 जो यहाँ पर है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अब प्रीवियस सपोर्ट विल एक्ट आज का रेजिस्टेंस। और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो है 24,000। तो ये 24,000 पे हमको दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। पहला रेजिस्टेंस हमको 23,826 के आसपास देखने को मिलेगा। ये दो इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए बन जाते हैं। अब हम आएंगे बैंक निफ्टी पे। देखिए, बैंक निफ्टी ओवरऑल अब वीकली एक्सपायरी विदा हो चुकी है। वी हैव सीन द क्लोजर ऑफ वीकली एक्सपायरीज, नाउ इट विल बी मंथली एक्सपायरी 0 DTE, which brought a lot of regime change or the shift in the underlying sentiment or underlying price action has now gone, and we are left with only monthly expiry. Now, to focus on the price action, I think there will be a lot of changes. आने वाले 2 हफ्ते बहुत क्रिटिकल है। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते से 3 हफ्ते हमको समझने में लगेगा कि मार्केट का जो डायनामिक है, बेस्ड ऑन इट्स ATR या बेस्ड ऑन इट्स प्राइस या बेस्ड ऑन इट्स रेंज, वो क्या होगा। पर अगर हम वीकली चार्ट देखें तो ये रेंज में है। बैंक निफ्टी ने अगर आप देखें तो ओवरऑल कोई रेंज एक जो बनी थी उसके नीचे ब्रेकआउट दिया है। अगर आप देखें यहाँ पर, और इसको मैं थोड़ा सा एक्सपांड करूं, तो ये जो एक प्राइस लाइन थी 50,850 के नीचे क्लोजिंग दी है। अब जो सपोर्ट या आप बोल सकते हैं प्रोबेबल ट्रेंड है वो साइडवेज ही है। बुलिश एक समय था जब हमने सितंबर में देखा था, पर अब ये साइडवेज टू आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है। अगर आप इसका ब्रेड्थ का चार्ट देखें तो मैंने यहाँ पर इसका ब्रेड्थ का चार्ट लगाया है बैंक निफ्टी का डेली का। इफ यू सी द नंबर ऑफ स्टॉक्स, अराउंड 80% स्टॉक्स इसके बेयर्स की ग्रुप में है। दिस इज डेली चार्ट। वोलैटिलिटी जो है अभी भी फिलहाल सबड्यूड है, एंड एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें तो बहुत लोअर लेवल पे है, विच वी हैवंट सीन सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स। तो ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। पर अगर आप इसका डेली चार्ट पे देखें तो जो प्राइस एक्शन है, जो प्राइस एक्शन है वो इसका 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास है। तो वो जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है वहां पे हमको शायद एक पुश देखने को मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। हमें ध्यान में रखना है प्रिसीडिंग ट्रेंड। प्रिसीडिंग ट्रेंड अगर आप आवरली पे आकर देखते हैं तो बेयरिश रहा है। डेली चार्ट पर अगर आप ओवरऑल देखें तो एक हाई वेव कैंडल बनी है। हाई टू लो की रेंज ज्यादा है, बट ओपन और क्लोज के करीब है। इसका मतलब कंफ्यूजन है। रेंज एक्सपांड हुई है। हाई जो है, लो जो है काफी दूर है, बट क्लोज ओपन के पास हुआ है। दैट मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा साइडवेज एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली सेल ऑन राइज है मिड टू लॉन्ग शॉर्ट टर्म में, बट कौन से लेवल से जो हमको ध्यान रखने हैं, तो विल कम डाउन टू 1 आवर चार्ट। 1 आवर चार्ट पे अगर देखें तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट पे हम देखेंगे सबसे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी इस समय बैंक निफ्टी के लिए है वो है 49,893, विच इज अराउंड दिस लेवल। 49,800, 800 टू 900 का ऐसा जोन है। ये जोन पे हमको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से ही हमने एक अपवर्ड मोमेंटम देखा था। तो एक रेंज बता सकता हूँ मैं आपको, ये अगर सपोर्ट बैंक निफ्टी लेता है तो दूसरा जो सपोर्ट है वो 49,800 के पास ही है। ये दोनों काफी पास पास है। अगर ये टूटे तो हम मान सकते हैं कि फिर बैंक निफ्टी और नीचे जाएगी, वी मे सी 48,600। बट ये टूटना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। अगर ये नहीं टूटते तो हमको रेंज देखने को मिलेगी, और अपसाइड में हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा 50,753। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो हम हो सकता है कि अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें। पर 50,753 के बाद दूसरा रेजिस्टेंस है 51,280। तो दिस इज द प्रोबेबल रेंज। इसलिए कुछ खास ट्रिगर नहीं आने वाली वीक में, विच वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू इकोनॉमिक डेटा एंड स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली
सैलून राइज की है क्योंकि ब्रेड बैंक निफ्टी की भी फिलहाल वीक ही है। कम डाउन टू अदर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इम्पोर्टेंट डेटा सेट, ये है पूरे मार्केट का ओवरव्यू। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले जब मैंने बोला था, देखिए ग्लोबल डायनामिक शिफ्ट हुआ है लास्ट के 3 हफ्तों में। इससे पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं, they will favor the US dollar and the US companies, and obviously there will be certain policies that will put other economies into some kind of a shock. At the same time, China is pumping their own economy with trillions of yuans to improve the underlying sentiment and health, which has been deteriorating in terms of GDP. At the same time, domestic front पे डेटा ऐसा है नहीं encouraging specifically earnings का, which is very important, and we have seen market correcting almost 10%, और उस पे ये earnings का अगर डेटा और प्रेशर डालेगा from various other sectors as well, not just FMCG, so we may see further weakness in the market. Now if you look at this particular data, ये वीकली एडवांस डिक्लाइन है। देखिए सारे सेक्टर्स रेड में, सारे सेक्टर्स। आप एफएमसीजी में देखिए जो स्टार्क कट आया है, ब्रिटानिया, एशियन पेंट, कोलपाल, ऑलमोस्ट 10 से 15%। उसके बाद अगर आप कोई सेक्टर देखें तो मेटल्स देखिए, मेटल्स में ऑलमोस्ट 10% उनके गिरावट आई है। एंड एट द सेम टाइम बैंकिंग और ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी हो गया, केमिकल्स में देखिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फार्मा, हम में गिरावट आई है। सिर्फ जो गेन हुए हैं वो है टेक्नोलॉजी, और ऑब्वियसली टेक में भी वो कंपनीज जिनका एक्सपोजर टुवर्ड्स नॉर्थर्न अमेरिका रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी फेवर्ड। ये एडवांस डिक्लाइन का डेटा है विच पॉइंट्स टू द bearish sentiment, yet kind of an oversold state for entire market. ओपन इंटरेस्ट हम देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द प्राइस एक्शन दैट वी हैव टू फोकस। देखिए 23,600 का एट द मनी का स्ट्राइक बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप बहुत है, 23,500 फ्यूचर्स के हिसाब से 23,500 पे काफी शॉर्ट बिल्टअप है। उसके बाद अगर हमको कोई सपोर्ट देखने को मिलेगा तो 23,400। ये जो 23,500 पे जो आप शॉर्ट बिल्टअप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें हो सकता है कि एक बार प्राइस वापस से रिवर्ट करे। अपसाइड में रेजिस्टेंसेस जो हमने बताए हैं हमारी स्ट्रैटेजीज के हिसाब से, देखिए 23,800 से 23,900 का जोन है जहां पर आपको अच्छा खासा एक प्राइस में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर थोड़ी सी भी वीकनेस आती है, आपका 20 डेज मूविंग एवरेज स्लोप डाउन कर रहा है, 50 डे स्लोप डाउन कर रहा है, आपका 200 डेज के आसपास मैं मानता हूँ, बट इतना आसान नहीं रहेगा रिकवरी। तो आई थिंक 23,800 से 23,900 एज पर ओआई एज वेल, यू माइट सी दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑन द डाउन साइड। ऑब्वियसली ये जो इतना बड़ा ओआई के दो पिलर्स आप देख रहे हैं, ये यही दर्शाता है कि 23,500 के आसपास प्राइस एक्शन बहुत क्रूशियल रहने वाला है निफ्टी 50 फ्यूचर्स का नवंबर का। बैंक निफ्टी एट द सेम टाइम वीकली चलेगा, हम मंथली पे फोकस करेंगे। देखिए ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक रेंज बता रहा है। दीज आर ऑल हेल्ड पोजीशंस ऑन द मंथली एक्सपायरी ऑफ 27 नवंबर, बट ऑन द शॉर्ट टर्म इन कमिंग वीक हम क्या कर सकते हैं। देखिए 50,500, 50,296 की क्लोजिंग है। मैंने बोला है कि 50,750, 5750 is the resistance. So we might see 5750, 5500 as one place where Bank Nifty will see certain resistances. On the downside, no doubt, 50,000 ही है जो लाइन इन द सैंड है। ये चार्ट में भी हमने एनालिसिस करके आपको बताया कि अगर उसके नीचे जाते हैं तो गेट इज ओपन टू 48,600 एंड बैंक निफ्टी कैन ब्लीड फर्दर। एक कोई से भी बैंक या अर्निंग में हमने डिसअपॉइंटमेंट देखा, दैट वुड सेंड अ शॉक और प्रोबेबली ट्रिगर फॉर बैंक निफ्टी इनटू बेयरिश जोन। पुट कॉल डेटा जो है, अगर आप देखें तो ये निफ्टी का पुट कॉल डेटा है। अगर आप फुटबॉल देखें तो एक ओवरसोल्ड लेवल से उसमें एक रिवर्सल आया, तो ये जो ओवरसोल्ड स्टेट है, आई थिंक हम वी विल गो इनटू अ साइडवेज जोन, ये बता रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप आईवी देखें, आईवी क्रश 10 तक के हो गया एटीएम आईवी का, अगर आप देखें ये काफी हिस्टोरिक लेवल है। मतलब ऐसे दीज आर वेरी ओवरसोल्ड लेवल्स इन टर्म्स ऑफ आईवी। कंप्लेसेंट स्टेट पॉइंट करता है लो आईवी, एंड हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी कंटिन्यूज टू राइज। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि
Before going down, market should stabilize, not for the upside, but यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होता है और वीकनेस आती है, तो वी विल कंटिन्यू द डाउन ट्रेंड टुवर्ड्स 23,200 टू 23,300। सेम थिंग अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी की हमने 27 नवंबर की एक्सपायरी दी है, 50,080 रेंज है, तो बैंक निफ्टी ने लास्ट कुछ महीने से सस्टेन करी है, और वही हमको यहाँ पे पुट कॉल रेशियो भी बता रहा है, बीइंग अ कॉन्ट्राडिक्टरी इंडिकेटर, इट इज वर्किंग as against, and it is pointing कि 50,000 जो 250,000 300 का लेवल, वहां पर एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, वहां पर क्लोजिंग है, 50,000 इज लाइन इन द सैंड। अगर वहां पर वो उसको तोड़ता है तो हम ट्रिगर देख सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए, जब तक कि हम 50,000 के ऊपर हैं। अगर आप बैंक निफ्टी की एटीएम देखें और हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी देखें, तो जो डिफरेंस है इट हैज बीन कंटिन्यूअसली देयर। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में आईवी क्रश और आईवी अपकोर्स स्टेबलाइज होगी। We are into a change in the underlying structure of the market, प्लीज बंद हुई है, तो मेरे ख्याल से हाउ वुड आईवी बिहेव इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ये डोमेस्टिक फ्रंट पे ऐसा कोई डेटा नहीं है विच इज गोइंग टू बी वेरी बिग ट्रिगर इन टर्म्स ऑफ a new trend or further selling. It is all going to come from the international as well as the domestic earnings season that is going to come in. तो वो हमें ध्यान में रखना है। ऑन द ग्लोबल फ्रंट अगर आप डेटा की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द डेटा आफ्टर यू नो फ्राइडे टू ट्यूसडे इज नॉर्मल डेटा। अगर आप कोई सा क्रिटिकल डेटा की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो डेटा आएगा वो आएगा थर्सडे को, विच इज होम सेल्स डेटा, and it is very important। और existing home sales का data is you know consensus है 3.88। existing home sales month on month needs to see an improvement, क्योंकि Fed का तो target था जो month end तक के, that has been on track and they have further worked on the interest rate, Fed rate, but now it is important कि जो data है underlying economy का वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। S&P ने ऑलमोस्ट 6,000 का लेवल टच करा है, वहां से वी आर इन फॉर सम काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म करेक्शन बिकॉज ऑफ द एलिवेटेड लेवल्स एज वेल। तो ये हुई इंटरनेशनल डेटा सेट की बात। को जो ध्यान रखना है वो है ये, क्योंकि डेटा इंटरनेशनल फ्रंट पे है, डोमेस्टिक फ्रंट पे इतना नहीं है, तो डोमेस्टिक फ्रंट पे जो इम्पोर्टेंट बन जाएगा वो अर्निंग्स and at the same time price action. Remain very cautious for this market. If only there has to be a short-term bottom into the market, the confluence level is at around 23,200 to 23,100, where we see a meaningful zone where market can make a short-term bottom. Otherwise, for now, we remain still on rise, the cautious approach. Thank you for joining in and tuning in this video. We wish you a great week. Thank you from Stockbridge.